drive is it handsomely. So today it's one more opportunity for this to take the full advantage. A lot of questions being asked why he is not being included, the reason behind. I believe that management committee watches his approach quickly and closely, analyze and observe it, read it proper. So as Sakib Pandya, I believe he should take his time today. He has the best moment to he may be able, it may be affordable to play too many dots. It's manageable, you are not chasing a big total. So this is the best way that you can bring your lost form back. He has taken his start, his batting on 4F6. So I believe he will be just, believing it quite well, and he will be knowing it quite closely. And he will be trying to take the full advantage. One more opportunity being brought into the side. Now we're going for a change. Now it's a Jaswani who is going to continue. Manzoor Naqshbandi bowled his 2. It's 22 for the loss of 1. And for Omar Gul, there is a slips in place. Backward point, a straight to a long off, just close to the edge of the boundary. Mid up goes up in the circle, mid wicket goes back, fine leg stays up. Very slow in play. That's a good move by Sakib Pandya today. Maybe he's enjoying his batting, because normally you don't get this normal approach. He's always looking rush up blood. He looks to go for those big shots. His inside out shots. So today you might be thinking, let me give a try and just show a bit of patience level, be a bit more temperamentally strong. And he pulls. There is a cover. In that deep, wideish long on. So the runs are not stopping. If you are defending that total, for 2 options. 1, to block the runs. 2nd, to take those wickets. He should try and get that mid-wicket inside. There he goes. This is what I talk about. Sakib Pandya goes. Ho! Flashes over point and flashes for a 6. That's where he creates room. He's so natural into the slash of the shots. And he was waiting a lot. He looked to be a patient man, but you can't keep more patience. Is Sakib Pandya for you. How glorious he picked that line. Flashes it like a flash. The double figures now, Pandya goes. Oh, Peaton outside off stump, keeping low. It's Azam going on. We will be a bit silent with the commentary. Hope you bear with the same. Good start at 30 for the loss of 1 wicket. Pandya now started to show his Pandya power. And missed out on that moment. A bounce, that's not helping Sakib Pandya to go for those big shots. How's pace, how's bounce. That's his tendency, what he's so good at, so impressive. Twenty runs only to need. 9 wickets in hand for Sikhi Stars Burgaon. A lot of batting to come. Oh no, missed out, lucky. Totally has been a man of big lucks. Very fortunate on that moment, down the track, missed out, the ball just went through very high up the stumps. Has been beaten on the trot by Jaskar. Luckily for him that he survived. So another over gets done. 4 overs gone, slightly going over 7. It's 30 for the loss of 1 wicket. And back to Bilal. का जो हदफ उस 130 रन के हदफ में साकिब पांड्या आज
उमर गुल और साकिब पांड्या किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। आपको मौका मिला है, अपने आप को साबित करने के लिए आपको मौका मिला है। क्या इस मौके को साबित कर सकते हैं साकिब पांड्या और उमर गुल? एजाज वानी अपने 2 ओवर्स में 17 रन खर्च के एक खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब हुए हैं। इनिंग का ये 5वां ओवर, 4 ओवर्स में 30 रन अभी तक आए हैं पहले 4 ओवर्स में। नए जो बल्लेबाज अब गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाए गए हैं, विकी वानी अब लगाएगी। दानिश को अब गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाए गए। 96 गेंदों में 90 रन दरकार इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस मुकाबले को लग रहा है जिस तरह से स्टार बडगाम की टीम एंजॉय करती हुई इस मुकाबले को आज काफी एंजॉय किया है। गेंद अंदर आती हुई हल्के हाथ से इस गेंद को खेला, 1 रन आसानी के साथ चुराएंगे। चहलकदमी के साथ दोनों खिलाड़ी 1 और रन चुराते हुए इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 31 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। दानिश को अब गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाए गए। फैसल यूसुफ मीर फुरकान हमारे साथ इस मुकाबले का मजा लेते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जो भी शायकीन दोनों पेज पे इस मुकाबले का मजा ले रहे हैं। आपसे एक ही निवेदन है, लाइव नशरियात को शेयर जरूर करते जाएगा। अगर हम पेज को फॉलो नहीं किया है, पेज को लाजमी फॉलो कर लीजिएगा। 5 अच्छे 6-2 के औसत से आपको रहना चाहिए, तो ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। इस बार की अगली गेंद लेकर गेंदबाज अंदर आती हुई अपील, यहाँ पे कितना कार है इस अपील को। बल्ले पे लगी थी, इशारा आता हुआ एम्पायर की जानिब से, बल्ले के अंदरूनी भाग पे लगी थी ये। 1 और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 32 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। 94 गेंदों में 88 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। उमर गुल 8 गेंदों का सामना किया, 8 रन बनाकर नाबाद। साकिब पांड्या 12 गेंदों का सामना किया, 11 रन बनाकर नाबाद। खेरे उमर सामना करेंगे इस बार की अगली गेंद का। खूबसूरत स्ट्रोक, गेंद जाएगी मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर। किसी भी फील्डर के पास कोई भी मौका ना बनता हुआ गेंद पलक झपकते ही बाउंड्री लाइन से बाहर जाती हुई 4 रन के लिए। उमर गुल के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका, पैड्स पे गेंद थी और खूबसूरती के साथ इस गेंद को निकाल दिया। 4 रन के लिए स्कोर बढ़ता हुआ 36 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। उमर गुल 12 के स्कोर पे नाबाद। खेरे 36 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। इनिंग का पावर प्ले का ये 5वां ओवर जारी। फील्ड सजाते हुए यहाँ पे मुस्लिम सपोर्ट्स की टीम के कप्तान यहाँ पे फील्ड सजाते हुए मिडविकेट के क्षेत्र में अब एक खिलाड़ी को तैनात किया गया उमर गुल के लिए। दानिश इस ओवर की अगली गेंद लेकर कोर्ट रोड एंड से चले, सामना करेंगे उनका उमर गुल। गेंद उठाना चाहते थे, यहाँ पे अपील हो रही है और आउट करार दिए गए हैं। उमर गुल वापस जाएंगे। दूसरा झटका लगता हुआ अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश वहां पे उमर के द्वारा। गेंद बल्ले के निचले सिरे पे लगी और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई भी गलती ना करते हुए विकेट कीपर वहां पे ये दूसरा झटका लगता हुआ स्टार बडगाम की टीम को उमर गुल के रूप में वापस जाते हुए निराश कदमों के साथ उमर गुल 12 रन बनाए, 14 गेंदों का सामना किया है। 36 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। अब टीम के प्रमुख एक मायनाज बल्लेबाज आसिफ रमजान ने यहाँ पे नमदार होते हुए एक बेहतरीन खिलाड़ी, वॉल में कहूँ मैं हमेशा कहता हूँ एक बेहतरीन कूल काम कंपोज्ड खिलाड़ी और बेहतर जानते हैं, बेहतर समझते हैं जिस तरह से क्रिकेट खेलते आ रहे, जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। 36 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। दानिश यहाँ पे विकेट दिलाते हुए एक इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू दिलाते हुए यहाँ पे अपनी टीम को इस मुकाबले में अगर आपको वापसी करनी है तो विकेट्स आपको रेगुलर इंटरवल्स पे लेनी होगी। विकेट्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रही है यहाँ पे। ये दूसरा झटका लगता हुआ मुस्लिम सपोर्ट्स की टीम यहाँ पे चाहेगी 1 और या 2 विकेट्स। और खासतौर पे आसिफ रमजान की मैं अगर बात करूं तो अगर आसिफ रमजान को आउट करने में कामयाब होते हैं तो मुकाबला यहाँ पे काफी दिलचस्प होने जा रहा है। 92 गेंदों में 84 रन आपके पास अभी भी है खेलने के लिए। किस तरह की एफर्ट से यहाँ पे देती है मुस्लिम सपोर्ट्स वो देखने वाली बात होगी। नए बल्लेबाज आसिफ रमजान अब आए हैं, बेहतर जानते हैं बाबा भाई उनके बारे में, बेहतर एक्सप्लेन करेंगे इस खिलाड़ी की जो टेक्निक है, इस खिलाड़ी की जो बल्लेबाजी है।
थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी खिलाड़ियों से, इनिंग्स बिल्ड करना जानते हैं, गेंद की मेरिट पे खेलते हैं। गेंद खराब लाइन पैर्स पे गेंद थी और वाइड का इशारा आता हुआ एम्पायर की जानिब से। 5 और रन जुड़ते हुए स्कोर बोर्ड में एक्स्ट्रास की सूरत में स्कोर बढ़ता हुआ इस चौके की बदल से 41, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। पहली गेंद खराब गेंद में कहूंगा वहां पे दानिश के द्वारा, लेग स्टंप की काफी बाहरी गेंद थी, विकेट कीपर की जानिब से चूक और 4 और रन, 5 और अतिरिक्त रन जुड़ते हुए स्कोर बोर्ड में। एफर्ट आप नहीं कर सकते, एक लो स्कोरिंग टोटल में आप ये एक्स्ट्रास एफर्ट नहीं कर सकते, तो सही लाइन और सही चल पे गेंदबाजी करनी होगी। इस बार की अगली गेंद लेकर दानिश चले, ऑप्शन से बाहर गेंद, एक और चौका क्या यहाँ पे आएगा? 22 की सूरत में एक और चौका आता हुआ विकेट कीपर की जानिब से, एक और चौका यहाँ पे एक्स्ट्रास की सूरत में और रन मिलते हुए स्कोर बढ़ता हुआ 45, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे उस चौके की मदद से। खराब विकेट कीपिंग में कहूंगा यहाँ पे, आज दिन नहीं रहा है विकेट कीपरों का, आज पूरा दिन यहाँ पे स्ट्रगल किए है विकेट कीपर्स। अगर मैं विकेट कीपर्स की बात करूं तो 9 रन यहाँ पे एक्स्ट्रास की सूरत में 2 गेंदों में आए हैं। 45, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे इनिंग का ये 5वां ओवर जारी है। आसिफ रमजान अभी आए हैं, एक गेंद का सामना किया है और ऐसे फ्री रन अगर आप देंगे तो आपको थोड़ी सी ज्यादती अपने आप से करते। इस छोटे से टारगेट को अगर आपको डिफेंड करना है तो आप बेहतर परफॉर्मेंस देनी होगी यहाँ पे फील्ड में। 45, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे 5 के औसत से आपको रन अब चाहिए। रिकॉर्ड रन रेट अब 5 की रह गई यहाँ पे। 91 गेंदों में 75 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। ड्राइव किया आसिफ ने, 1 रन आसानी के साथ चुराएंगे। गैप में धकेला खिलाड़ी, जब तक इस गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, 1 और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 46, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। एंड्स यहाँ पे चेंज होंगे और बाबा भाई की जुबानी अब अगले ओवर की जो इस मुकाबले की अगर बात करूं तो ये मुकाबला किस तरह से जा रहा है, अब अगले ओवर में आप बाबा भाई की जुबानी सुनेंगे। Thank you, Bilal. And with the entrance of Asif Ramzan, things will normalize now. It's a class act. And I do call him Sangakkara of Sky Stars Cricket Club. Go back. Yes, absolutely. He's technically very solid. And I always appreciate his temperament. He's a cool-minded reader. There have been some ups and downs with his batting. The reason behind, he is not consistent on that batting slot. That's the reason why you will feel just ups and downs with his batting seams. Normally, if you look quite closely at his appearance as a cricketer, that left-handed dashing player, he should be there at the number 4 or number 3. And at moments maybe number 5 as well. But he is continuously being changed with his batting slot, with his batting position. So that's why there is a bit of an impact on his batting performance. But in this season, since that glorious knock he played against Royal Goodwill at Hasanpura Premier League, and he went on to lift at the championship of Charlotte Book Champions finals, so he's back with the business. And on the other side, Sakib Pandya, left and right hand combination, maybe. Asif Ramzan being alongside him will keep on asking him, don't lose your cool, play normal, play very, up to that merit cricket. We are up to just that situation where we lost Umar Gul as well. So at least to get some runs, make sure you get close to the target, then you might go for those big shots. But Sakib Pandya, I rate him among those cricketers who never listens to anyone. If you listen, he listens for some balls, and he just takes back to his normal situation. That's only aggression, and we believe intention is positive. There he goes, Plex, lovely shot. That's a good shot. Rolling up wrist, bad ball to ball onto the pads. Bad line, and there you see the results. So that's why we have seen too many, we believe those big hitters of the ball, when you have got some experienced cricketer alongside a good companion, he can normalize the things. He can make you cool down, he can make you just convert those totals, small totals you start with, into some big things.
That's what. Ah, inside out. Glorious. Glorious. Has it gone and carried all the way? Yes, it has. In style. Just creates his back leg and goes over covers and goes for another half a dozen. That's a lovely shot from Sakib Pandya. It was a bit onto the upper line, and that's what he believed in. Up and over. And it goes and crossed all over for 6. So he's not going to cool down. That's for sure now. He's on to the 21 of 14. And Bilal, I remember in the last season, we were playing the quarter-final at Gund Premier League. This man came in and he started to blast the bowlers. He batted for 108 in no time, just around 32 balls. We went on to win that match quite comprehensively. Then I believe it was Narabal Champions League. It was semi-final. No batter from Skid Stars was proving out to be impressive. He came as an opener and he stood like the Rock of Gibraltar. He batted for 101 runs, unbeaten. And we were just playing against a Arath cricket team. Likes of Nadeem Dar was there, Imtiaz Lefty was there, Tajammul Baba was there, Jahangir Lone was there. So ultimately this man came in and scored that brilliant century. So he has got that talent, but only thing is he just loses his blood at moments. If he shows a bit of, if he just contains that blood, if he just contains that blow, and if he just contains that rhythm, I believe he's a very, very strong character out here in Kashmir cricket. ये चीज़ आपको बिल्कुल आसिफ रमज़ान से सीखनी होगी. आपके साथ जिस तरह से खेलते हैं, जिस तरह से इनिंग्स बिल्ड करते हैं. एक और खूबसूरत स्ट्रोक और गेंद जाएगी आधे दर्जन रन के लिए. क्या खूबसूरती के साथ इस गेंद को पिक किया. एक्स्ट्रा कवर की ऊपर से किसी भी फील्डर के पास कोई भी मौका ना बना. सब फील्डर्स यहाँ पे बिल्कुल देखते हुए और अप्रिशिएट करते हुए इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 64. 2 खिलाड़ी के नुकसान पे एफर्ट लेस स्ट्रोक अगर मैं बात करूं तो साकिब पांड्या के बल्ले से निकलता हुआ. पांड्या आपके नाम में है तो कुछ तो गुण होंगे आप में, और साबित करते हुए आज साकिब पांड्या आज मौका मिला है उनको यहाँ पे. और क्या खूबसूरती के साथ अभी तक बल्लेबाजी की है. बेहतर स्ट्रोक्स यहाँ पे उनकी जानिब से देखने को मिले हैं. मुझे भट्टा टीम का हिस्सा नहीं है, वो जेकेसी के अंडर अब खेल रहे. अब उनको शायद अलाउ नहीं किया जाएगा खेलना लोकल क्रिकेट जब तक वो जेकेसी में खेलेंगे. आई डोंट थिंक आप उनको देख पाएंगे. जो भी क्रिकेटर्स जेकेसी के अंडर अब खेल रहे हैं आप उनको अब नहीं देख पाएंगे लोकल क्रिकेट खेलते हुए. फिलहाल पावर प्ले यहाँ पे इख्तिताम होता हुआ. एक बेहतर पावर प्ले यहाँ पे 65 रन बोर्ड पे लग चुके हैं. 12 एक्स्ट्राज इन 6 ओवर्स में आए हैं. 65 2 खिलाड़ी के नुकसान पे. अब आधे से ज्यादा रन आपने बनाए हैं पहले 6 ओवर्स में ही. इस मुकाबले में अगर मैं बात करूं तो एक तरफा ये मुकाबला किया है पूरी तरह से. साकिब पांड्या 16 गेंदों का सामना किया है, 28 रन बनाकर नाबाद खेले. आसिफ रमजान अभी आए हैं, 4 गेंदों का सामना किया है, 3 रन बनाकर नाबाद खेले. दानिश पिछले ओवर में एक सफलता हासिल की थी. एक बार फिर गेंदबाजी के मोर्चे पे अपने कोटे का ये दूसरा ओवर करने जा रहे. ऑप्शन से बाहर ये गेंद खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले का संपर्क हुआ नहीं. गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में. रन की कोई भी संभावना नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं. स्कोर 65 2 खिलाड़ी के नुकसान पे. इनिंग का ये 7वां ओवर जारी. पावर प्ले बेहतर खेली है यहाँ पे स्काई स्टार बडगाम की टीम. हालांकि विकेट्स जल्दी खोई थी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे आसिफ रमजान और साकिब पांड्या, साकिब खासतौर पे एंकर करते हुए इस इनिंग्स को 16 गेंदों का सामना किया है. 2 छक्के शामिल, 28 रन बनाकर नाबाद खेले. इस बार की अगली गेंद का सामना करेंगे आसिफ रमजान. और ड्राइव खूबसूरती के साथ खिलाड़ी वहां पे ताना डीप पॉइंट के क्षेत्र में. जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता, चहलकदमी के साथ एक और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में. इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 66 2 खिलाड़ी के नुकसान पे. इनिंग का ये 7वां ओवर इस वक्त जारी है. दानिश अपने कोटे का दूसरा ओवर करे, 12 रन खर्च करके एक खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब हुए हैं. गेंदबाज दानिश एक बार फिर साकिब पांड्या के लिए 66 बोर्ड पे लग चुके. इनिंग का ये 7वां ओवर जारी. 66 2 खिलाड़ी के नुकसान. फील्ड सजाते हुए यहाँ पे एक फाइन लेग यहाँ पे अब साकिब के लिए रखा गया है. लॉन्ग ऑफ, एक डीप पॉइंट, एक काउ कॉर्नर रखा गया है. इस फील्ड के साथ दानिश गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे साकिब.
गेंद की लाइन में आके इस गेंद को हल्के हाथ से खेला, 1 रन आसानी के साथ चहलकदमी के साथ चुराएंगे दोनों बल्लेबाज जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता। एक और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में। जानते हैं यहाँ पे आपको जल्दबाजी करने की कोई भी आवश्यकता है नहीं, कोई भी जरूरत है नहीं, तो चहलकदमी के साथ अपना टाइम लेके बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाज आसिफ रमजान और साकिब पांड्या लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन के साथ ये दो बल्लेबाज किस तरह से किस अप्रोच के साथ आगे बल्लेबाजी करते हैं वो देखने वाली बात होगी। इस ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज चले, गेंद की लाइन में आके इस गेंद को हल्के हाथ से धकेला खिलाड़ी जब तक इस गेंद को डीप जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता। एक और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में। कॉर्नर की जानिब से खिलाड़ी वहां पे तैनात किए गए हैं और यहाँ पे शोल्डर्स डाउन बिल्कुल लग रहे हैं यहाँ पे इस मुकाबले से दूर होते हुए टीम मुस्लिम सपोर्ट्स बांडीपोरा। आज दिन का ये पहला मुकाबला खेला जा रहा है। इस मुकाबले को अगर यहाँ पे टीम स्केस्टार बड़गाम की टीम जीती है ऑलमोस्ट यहाँ पे क्वालिफाई करेगी सुपर 8 के लिए। इस ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज चले, गेंद की लाइन में आके इस गेंद को हल्के हाथ से धकेला। पहले 5 गेंदों में 4 रन इस ओवर में आए हैं। अच्छी लाइन पे गेंदबाजी की है, अच्छी लेंथ पे गेंदबाजी की है दानिश ने। इस ओवर में स्कोर बढ़ता हुआ 69, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। 7वें ओवर की आखिरी गेंद का आना बाकी, 10 के औसत से रन बने हैं अभी तक पहले 7 ओवर्स में। लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन, थोड़ा सा यहाँ पे फील्डिंग आपको एडजस्ट करनी पड़ती है। हर एक गेंद पे आपको जो है फील्डिंग एडजस्ट करनी पड़ती है। आसिफ रमजान 7 गेंदों का सामना किया है, 5 रन बनाकर नाबाद खेले। कूल काम कंपोज कस्टमर। अगर मैं आसिफ की बात करूं तो एक हाई रेट किया जाता है। गेंद ड्राइव किया खूबसूरती के साथ, खिलाड़ी गेंद के पीछे और क्या खूबसूरत टाइमिंग इस गेंद पे। खिलाड़ी वहां पे तैनात किए गए थे, उनके पास कोई भी मौका ना बनता हुआ गेंद एक्स्ट्रा कवर फोन लाइन से बाहर जाती हुई 4 और रन के लिए। टाइम किस तरह से किया गया है इस स्ट्रोक आप देख सकते हैं। इस खिलाड़ी के पास काफी वक्त है और गेंद की मेरिट पे जिस तरह से खेलते हैं हाई रेट किया जाता है इस खिलाड़ी को हमेशा। लोकल क्रिकेट में स्कोर फिलहाल 7 ओवर की समाप्ति के बाद 73, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। 7 ओवर यहाँ पे इख्तिताम होते हुए 73 बोर्ड पे लग चुके हैं। 10.43 के औसत से रन बने हैं। 73, 47 रन अभी भी दरकार इस मुकाबले को जीतने के लिए। 78 गेंदें शेष है और बिल्कुल एक तरफा ये मुकाबला पूरी तरह से कंट्रोल में। अगर बात की जाए स्केस्टार बड़गाम की, इस मुकाबले को पूरी तरह से कंट्रोल किया है गेंदबाजी में भी और बल्लेबाजी में भी। दानिश अपने 2 ओवर्स में 19 रन खर्च किए, खिलाड़ी को आउट किया। अब इशफाक को गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाया गया। इस टीम के कप्तान है इशफाक, उनका सामना करेंगे साकिब पांड्या। 18 गेंदों का सामना किया है साकिब ने, 30 रन बनाकर नाबाद, फिर 3 छक्के अभी तक लगा चुके हैं। साकिब चाहेंगे एक अच्छी पारी यहाँ पे छक्के पारी लगाई जाए आज। अगले आने वाले मुकाबलों में अपनी जगह पक्की करने के लिए आपको अच्छी परफॉर्मेंस आज इस मुकाबले में देनी पड़ेगी। फिलहाल इशफाक वानी अब गेंदबाजी के मोर्चे पे छोटे से रनअप के साथ राजदान एंड से गेंदबाजी करेंगे। सामना करेंगे उनका साकिब पांड्या। इशफाक इस ओवर की पहली गेंद अपने कोटे का ये पहला ओवर लेकर, इस इनिंग का ये 8वां ओवर लेकर इशफाक वाली धीमी गति की गेंद सीधे बल्ले के साथ खेला गया स्ट्रोक। खिलाड़ी वहां पे उनके पास कोई भी मौका ना बनता हुआ, गेंद पलक झपकते ही बाउंड्री लाइन से बाहर जाती हुई 4 रन के लिए। एक और चौका साकिब पांड्या के बल्ले से निकलता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 77, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। सेट होकर खेले, धीमी गेंदबाजी अगर होगी तो प्रहार करेंगे वो, अपना स्वाभाविक खेल अब यहाँ पे खेलेंगे साकिब पांड्या। जिस तरह से बाबा भाई बोल रहे थे कि वो किसी की भी सुनती है नहीं, अपनी ही सुनते हैं। जिस तरह से उनको खेलना आता है, 1 डायमेंशनल क्रिकेटर, बड़ी हिट्स के लिए जाने जाते हैं और यहाँ पे भी वो मुझे नहीं लगता कि अपने आप को रोकने में कामयाब। गेंद आगे आकर उड़ाना चाहते थे, मिस फील्ड होती हुई, खिलाड़ी से वहां पे 1 ही रन मिल पाएगा। प्रोटेक्शन वहां पे कॉर्नर के क्षेत्र में एक खिलाड़ी तैनात किए गए। 1 और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड, इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 78, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। इशफाक वानी अपने कोटे का ये पहला ओवर करे, इस इनिंग का ये 8वां ओवर करे।
43 रन अभी भी दरकार। 77 गेंदों में 43 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए और अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करने के लिए स्टार बडगाम्स के लिए। इशफाक वानी छोटे से रन के साथ फील्ड सजाते हुए आसिफ रमजान के लिए 8 गेंदों का सामना किया। आसिफ ने 9 रन बनाकर नाबाद खेले। आगे आकर इस गेंद को सीधे बल्ले के साथ खेला गया स्ट्रोक और गेंद 6 रन के लिए जाती हुई। आरिफ वहां पे मौजूद, कोशिश की थी उन्होंने लेकिन गेंद को लपक नहीं पाए और गेंद 6 रन के लिए जाती हुई। आसिफ रमजान के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला छक्का। स्कोर बढ़ता हुआ इस छक्के की मदद से 84। 2 खिलाड़ी के नुकसान पे इशफाक वानी काफी महंगे साबित होते हुए इस ओवर में अभी तक पहली 3 गेंदों में 11 रन खारिज किए हैं। 36 रन अभी भी चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। आसिफ सामना करेंगे इशफाक की इस अगली गेंद का। छोटे से रन अप के साथ आगे आकर इस गेंद को उड़ा दिया और गेंद जाएगी आधे दर्जन रन के लिए। खूबसूरती के साथ इस गेंद के लाइन तक पहुंचे आसिफ रमजान। स्ट्रेट एज एन एरो और गेंद आधे दर्जन रन के लिए। कमाल की बल्लेबाजी का मुजाहरा यहाँ पे आसिफ रमजान के द्वारा। धीमी गेंदबाजी आप इस बल्लेबाज को नहीं कर सकते। हाई लेवल हाई खिलाड़ी जिस तरह से खेलते हैं, हाई कैलिबर का ये खिलाड़ी है। इस तरह की गेंदबाजी मुझे नहीं लगता शोभा देती है। आगे आकर इस गेंद को सीधे बल्ले के साथ सही से टाइम नहीं कर पाए, सही से बल्ले पे लगी नहीं। 1 ही रन मिल पाएगा। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 91। 2 खिलाड़ी के नुकसान पे इनिंग का 8वां ओवर जारी। आसिफ रमजान 35 रन अभी भी दरकार इस मुकाबले को जीतने के लिए। सुल्तान का मुकाबला 30 को वो बड़ा मुकाबला यहाँ पे खेला जाना है। सुल्तान और रॉयल्स के दरमियान। साकिब के लिए गेंद को ड्राइव किया, खिलाड़ी वहां पे तैनात। 1 रन आसानी के साथ चुराएंगे दोनों बल्लेबाज जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता। 1 और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में। इस ओवर के बाद हम बाबा भाई की जुबानी सुनेंगे उस मुकाबले के बारे में, थोड़ा सा रोशनी डालेंगे उस मुकाबले की। अगर मैं बात करूं सुल्तान वॉरियर्स बारामूला और रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब के दरमियान वो मुकाबला जो भी टीम हारती है इस श्रृंखला से, इस टूर्नामेंट से, वो टीम बाहर जाएगी। बाबा भाई क्या कहना चाहेंगे उस मुकाबले के बारे में? Contest. Sees 2 brand clubs of the valley is going for that brand results. I would say it's do or die. You win, you go to the next stage. You lose, you got only one option left. That's to pack your bag and baggage and on the way back to your home. But ultimately, you will find both the teams star-studded. Anticipation is high, level is high. And out here in this big venue and on the turf wicket, so totally we believe that might come out as a very close contest, wherein 2 rivals will be going for that rivalry cricket contest. So that's going to set the stage, undoubtedly. And if you look closely at both the sides, Sultan Warriors Baramulla and Royal Goodwill, for the last 2 months, both teams have been through those ups and downs. Mostly, I will talk about Royal Goodwill. They're at the downfall these days, and the credit must be given to the side of Spectrum Kings Pampur. I remember the first team that defeated them in Hasanpura Premier League. It was a full-pack team of Royal Goodwill. They were chasing out there around 202, I guess. But all of a sudden, the match went down to the last over. But those young players from Spectre Kings Pampur defeating that star-studded team of Royal Goodwill. Since then, Royal Goodwill, I believe, just have been struggling a bit, After that loss, they have just gone around for 7 losses. They have been out of the tournaments, out of the many tournaments, I believe, at the very initial stage. So this tells you the story as a cricketer. When it's your day, you can be on the top. If you are a good player, when it's not your good day, you cannot have a good day at the office. So this might be the lesson for all those cricketers. And moving back to Sultan Warriors Baramulla, a year before, they were having upper hand on every cricket tournament out here. And ball him, next ball, tries to go for that smash. You will see Asif Ramzan disappointed, can't believe that he has been knocked over with that ball. And ultimately,
It's Danish who got the wicket of this man. And with captain now walking back to the pavilion. He scored around 19 runs, I guess. A good cameo, but all of a sudden he has to go back to the pavilion. And coming back to Sultan Warriors Baramulla. I love one thing about Baramulla, that's consistency. You know, you see Australians from the point of 1997. They lost a final against Sri Lanka in the 1996. But after that loss in the final, they came all together a different unit, reaching to the finals after finals, you know, winning titles after titles, winning series after series. That's the thing what you got to keep on. Same goes with Sultan Warriors Baramulla. They won too many titles a year before, and this season this has been just completely a bit of up and down with Sultan Warriors Baramulla. But they're consistent. They keep on playing cricket. They keep on providing the competition. They not let that, you know, we believe that passion coming down. So this is what makes Sultan Warriors Baramulla a very tough side in this very whole cricket of Kashmir. So truly they have got a great future. And also credit must be given to the man who is behind that mission, Arif Kataria. Even though I have not been in touch to him in person. I saw him a couple of times but never talked to him. But Nadeem Dar's legacy, Asim Bashir's top order, Wasim Kocher is, you know, his close at the right of the moment, and also having those match-winning plays, match-winning performers. And also one important thing you did mention, bench strength. Sultan Warriors Baramulla is the only team in the cricket valley of Kashmir that has got too much of bench strength. You see these days they are having too many good faces in this side. So this is good for the promotion of cricket. This is good for the promise of the young talent coming here in Kashmir Valley. So credit must be given to the management committee of all those reputed clubs all around the valley, providing such a wonderful platform. So you can take it other way as well. This is an employment generation. One side, it's not only cricket you go with. You believe that this is a standard of living as well. So we always should appreciate the owners who own these reputed clubs. They just, you know, spend money from their own pockets. They just, you know, keep on generations with the employment things. So this is why cricket out here in Kashmir has turned out just among those aspects where it should be taken quite good with the heart, and there is a promising future with the cricket. बिल्कुल बाबा भाई, एक और चीज़ आपसे जानने की कोशिश करेंगे इस गेम के बाद। नए जो बल्लेबाज आए हैं, जुनैद नूर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। पहली गेंद चौके के लिए जाती हुई, स्कोर बढ़ता हुआ 95। 3 खिलाड़ी के नुकसान पे आसिफ रमजान को आउट करने में कामयाब हुए थे यहाँ पे दानिश, लेकिन नए जो बल्लेबाज जुनैद नूर और साकिब पांड्या चाहेंगे यहाँ पे इस मुकाबले को जितना जल्द हो सके ख़त्म किया जाए, फिनिश किया जाए। 29 रन दूर इस मुकाबले से। बसुल यहाँ पे इसके स्टार बड़गाम की टीम। बाबा भाई, एक और बात आपसे जानने की कोशिश करेंगे। जो स्ट्रीक की हम बात करते हैं, एक स्ट्रीक जो बनी है रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब के सामने, थोड़ा सा अगर हम सुल्तान की बात करें, वो प्रेशर में खेलती है। क्या वजह रहती है कि वो प्रेशर हमें देखने को मिलता है? जो सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम काफ़ी बार काफ़ी क्लोज मुकाबले हुए हैं, और अगर मैं बात करूं कुछ मुकाबले जो वो टाई भी हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? सुल्तान वॉरियर्स बारामूला कहाँ पे लीड करती है, खासतौर पे अगर रॉयल गुडविल की मैं बात करूं उनके सामने? I believe it's only self-belief. It's only self-belief. As a cricketer, you should believe that you are the best. When you are playing cricket against a tough side of the valley, not only in the local cricket, you play at the international cricket, you should believe that you are the tough cricketer. You are the one who is strong on the given side. But talking about that pressure that Sultan Warriors Baramulla is going through the side of, we believe Royal Goodwill. It's on account of that self-belief, when you are not believing in your potential, when you just lose one important game, just getting close to that scenes, all of a sudden you just taste to the loss of that very cricket match, then it takes you a bit down. But morale has to be always high. The morale has to be lifted. That's why cricket is a genius game. As a genius of a cricket, you always should back your side. Backing your individuals is always important. It's not only in the game of cricket, in every profession of your life. Just talk about the family. We will take the example of a family. The family we belong to. When you are the members of a family, you keep backing your individuals, then you become a strong family. All of a sudden,
जिसको हम कहते हैं अल्लाह बचाए, all of a sudden in your family if something untowards happens, the whole family distracts. The reason is you do not believe in each other. The reason is you do not back each other. You got to back each other in the tough times. You got to back each other in the we believe successful times, because cricket is a game. It is not going to make you feel always good times. It can make you feel bad times, and that bad times, when you back each other properly, you always will have a good time to cherish in the future of your life. That's what Sultan Warriors Baramulla need to go with. Back your players, back your team, back the strategy, back the plans, and the time is not far away when you will be on the top, over the top of Royal Goodwill. एक और विकेट यहाँ पे गिरती हुई, साकिब पांड्या वापस जाते हुए 3 स्टंप्स के सामने पाए गए वहां पे इशफाक वानी के द्वारा। ये चौथा झटका लगता हुआ स्टार बडगाम यहाँ पे एक और विकेट गंवाते हुए। इशफाक वानी वो विकेट दिलाते हुए यहाँ पे साकिब पांड्या सेट होकर खेल रहे थे, अपना टाइम लेकर यहाँ पे आज अच्छे लग रहे थे, लेकिन यहाँ पे विकेट अपनी खोते हुए 97 के स्कोर पे ये चौथा झटका लगता हुआ। इशफाक का बल्लेबाज, जो नए बल्लेबाज भेजे गए, इशफाक अब आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। इशफाक वानी यहाँ पे विकेट दिलाते हुए। तो बात कर रहे थे हम उस मुकाबले की, अगर भाई जिस तरह से डाउनफॉल चल रहा है, आई वुड से एक डाउनफॉल चल रहा है रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब का, कहाँ पे लीड कर रही है, आई वुड से लीडरशिप में थोड़ी सी कमी आ रही है। आकिब मीर वन ऑफ द फाइनेस्ट, अगर मैं पूरे लोकल क्रिकेट की मैं बात करूँ, कश्मीर की एक बेहतरीन खिलाड़ी है, कहाँ पे वो ले कर रही है। जिस तरह से इस साल वो डाउनफॉल, पिछले साल पूरी तरह से जो लोकल क्रिकेट है उसको डोमिनेट किया था रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब ने। इस साल कहाँ पे आपको कमी लग रही है? जो मुकाबले कंटिन्यू कुछ टूर्नामेंट से बाहर भी हुए, इस टूर्नामेंट में काफ़ी कम चांसेस हैं उनको आगे जाने के। एक बड़ा टूर्नामेंट है यहाँ पे, अगर मैं इस बांडीपोरा प्रीमियर लीग की बात करूँ तो कहाँ पे कमी हो रही है और कहाँ पे वो लैग कर रही है? Different things. As a commentator, I can say the reasons. We believe on the background of the downfall of Royal Goodwill. If you see in the last couple of matches, they're making different combinations. Combination is also that matters the most. I believe changes in the batting order as well. You've got some superstars of the valley playing in the Royal Goodwill. So this is a kind of a combination wherein you got to just believe in the temperament. Only one big game, you lose and you are being shattered, you are being cracked, you are being, we believe, scattered like a pack of cards, like a pack of house. So this is why, if you just closely listen to my comments and listen to my suggestions, one good game, they lost the game against the Spectrum Kings Pampur. Since then they were scattered like a pack of cards. You will look at this ground, particles scattered here and there. Somebody needs to come up and just we believe group all these scatters, group all these particles. When you group all these particles, it will come up into a very strong group. So this is the reason somebody will have to raise up, somebody will have to grow up from Royal Goodwill. Maybe Ishtaq Rasool rises up. Akim Mir, you mentioned he can rise up. Asif Rasool is there, Mesetu, Waitili, Nasser Lone, Jack Lone. Talk about the star players of the valley. Everyone is out there in that Royal Goodwill. They are the royals, they are playing with the royalty, they are playing with the authority. But once you lose, you start to lose, and that's the problem with the Royal Goodwill. But one good title, one good finish, one good final, they win, they will be back. This is what they need. So for that, I believe they should be talking to each other, have the proper plans, make yourself temperamentally tough, make yourself temperamentally strong, give yourself time, and believe that we have got a strong opponent side always with your game, because you never underestimate a team that goes against your fight, because the team that plays against Royal Goodwill, remember, they're also a cricketing nation, they're also a cricketing team. So you got to believe in your capabilities, give yourself time, fight for the cause and fight for the spirit. You will be rising back again. बिल्कुल, इन नटशल यहाँ पे हम एक ही बात कहेंगे, एक बेहतरीन कॉन्टेस्ट हमें देखने को मिलेगा रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब और सुल्तान के दरमियान। आपके पास एक मौका इस श्रृंखला में, इस टूर्नामेंट में रहने के लिए। आप अफोर्ड नहीं कर सकते उस मुकाबले को हारना, और दोनों टीमें यहाँ पे चाहेंगी इस, अभी तक अगर मैं नॉर्थ कश्मीर की बात करूँ, नॉर्थ कश्मीर इस वक्त सबसे बड़ा टूर्नामेंट ये जो चल रहा है, और इस टूर्नामेंट को जीतने की कोशिश दोनों टीमें करेगी।
सुल्तान वॉरियर्स साथ साथ रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब। वहीं अगर यहाँ पे स्टार बडगाम की बात करो तो जिस तरह से उनका टाइम जिस टाइम से वो गुजरे, ड्रीम टाइम उनके लिए, इस टीम के लिए, और जिस तरह से परफॉर्मेंसेस आ रही, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस साथ साथ जो टीम एफर्ट्स आ रहे, रॉयल क्रिकेट क्लब को हराया है, एक बड़ी टीम बर्ड को हराया है और शालबुग के ग्राउंड में, और वो शालबुग चैंपियनशिप अपने नाम की है। तो काफ़ी कुछ इस टीम पे भी काफ़ी नजरें रहती है। ये टीम इस वक्त अगर मैं बात करूँ तो डोमिनेट कर रही है लोकल क्रिकेट, और जिस तरह से जिस कम्बिनेशन के साथ ये टीम खेल रही है इन कमिंग टाइम्स, मुझे लग रहा है ये काफ़ी बेहतरीन टीम होने वाली है और काफ़ी टफ कंपटीशन देने वाली है जो टीम्स इस टीम के सामने होंगी। फिलहाल इस मुकाबले की अगर मैं बात करूं, 60 गेंदों में 16 रन अब दरकार इस मुकाबले को जीतने के लिए। अब सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ बची आउट से। इशफाक भट्ट और जुनैद नूर दोनों खिलाड़ी ज़्यादा टाइम अभी तक बिताया नहीं है, क्रीज पे नए आए हैं और कोशिश यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों की रहनी चाहिए कि जितना जल्द हो सके इस मुकाबले को अपने नाम किया जाए। 105 बोर्ड पे लग चुके हैं, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। इनिंग का 11वां ओवर जारी, 10.5 की औसत से रन बने हैं अभी तक इस मुकाबले में। फ्रॉम द वर्ड गो अगर मैं बात करूं तो आज के स्टार बडगाम की टीम इस मुकाबले को पूरी तरह से कंट्रोल किया है। आज इस मुकाबले को स्टार बडगाम की टीम ने एक टीम एफर्ट, आज अगर स्टार की बात की जाए तो कुछ नए चेहरे भी अगर यहाँ पे आज इंट्रोड्यूस किए गए हैं, उन्होंने डिलीवर किया है आज अगर बात की जाए तो। फिलहाल 106, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। अद्दान छोटे से रन के साथ सामना करेंगे उनका। इशफाक भट्ट 4 गेंदों का सामना किया है, 6 रन बनाकर नाबाद खेले। इस बार की अगली गेंद हल्के हाथ से इस गेंद को खेल अपना टाइम लेते हुए यहाँ पे 1 रन आसानी के साथ चुराएंगे दोनों बल्लेबाज जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता। 1 और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 107, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। आपको बताता चलो ये लीग बेस्ड मुकाबले खेले जा रहे हैं। 26 तारीख तक ये लीग बेस्ड मुकाबले यहाँ पे शेड्यूल है, उसके बाद सुपर 8 जो नॉकआउट मुकाबले वो स्टार्ट होंगे। फिलहाल इस हफ्ते अगर मैं बात करूँ, इस हफ्ते लीग बेस्ड मुकाबले जो वो इख्तिताम होंगे अगर मौसम ने साथ दिया तो। सैटरडे तक का मुकाबले ऑलरेडी शेड्यूल हुए हैं इस टूर्नामेंट के। कल ऑफ लिया जाएगा, परसों के बाद हर एक दिन मुकाबले यहाँ पे खेले जाएंगे। गेंदा हल्के हाथ से इस गेंद को खेला, खिलाड़ी वहाँ पे तैनात 1 रन लेना चाहते थे वहाँ पे लेकिन नकारा। स्कोर बदस्तूर 107, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। इनिंग का 11वां ओवर जारी। अदनान इस बार की आखिरी गेंद लेकर चले, सामना करेंगे उनका इशफाक का जुनैद नूर। गेंद की लाइन में आके इस गेंद को हल्के हाथ से धकेला अलॉन्ग द कारपेट, खिलाड़ी वहां पे तैनात जब तक इस गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते। 1 और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 108, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। स्टार बडगाम की टीम 12 रन दूर इस मुकाबले को अपने नाम करने के लिए और सुपर 8 में अपनी जगह पक्की करने में। अगर मैं स्टार की बात करूं तो बाबा भाई से थोड़ा सा बातचीत करेंगे स्टार के कम्बिनेशन के बारे में, क्या कुछ कहेंगे और जिस फॉर्म से गुजर रहे हैं काफ़ी इम्पैक्ट उसका भी रहता है। आप किस माइंडसेट के साथ खेलते हैं और किस फॉर्म से गुजरते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। इसी आसना में गेंदा 6 रन के लिए स्टेडियम से बाहर जाएगी। धीमी गति की गेंद यहाँ पे इशफाक भट्ट, क्या खूबसूरत स्ट्रोक, स्कोर बढ़ता हुआ 114, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। तो बात करें अब स्टार बडगाम की जिस माइंडसेट के साथ और जिस फॉर्म से गुजर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस टूर्नामेंट के लिए? अगर मैं बात करूं बाबा, क्या कहना चाहेंगे स्टार बडगाम के लिए, क्या कुछ रहेगा आगे आने वाले मुकाबलों के लिए? Please, Stars Budgam in this Bandipora Premier League are about to be on the top. The reason they're consistent. They are just gone into in this league with a good combination. And today, when you believe that you are onto that stage, it must be a given priority to the different players as well. So you come up with some different faces. So this is what a reputed club does for the players, does for the team, does for the stake of cricket. Bring different faces, give them the platform, give them the different venue, let them give the fight, and they are showing it quite with the prosperity, quite with the promise, quite with the revolution. And coming back to the combination that you asked a question to me, one good game they were needing to go, and always you remember 2 months before Stars Budgam lost to the semi-final at the hands of Royal Goodwill at Wooler Cricket League, Amberpora Sopor.
We were chasing 187. We were with the good start. Adil Guldan and Shibir left. We just went very flourishing in the power play. All of a sudden, there is a tag with Sky Stars. You choke. They are called chokers. They were never good with the chase. On that day, they started good with the chase. All of a sudden, when the first wicket fell, once again there happened to be the collapse of the team, and we lost the match, I guess, with a margin of 34 runs. After the team regrouped, there was a lot of discussion, a lot of criticism, a lot of talks, how to do, why we are not doing, why we are not to the best. So there was a combination. There was differently, some different faces into the side. You were given the role, you were assigned the responsibilities, and one good game they needed to come back with the momentum, and that was once again the same Royal Goodwill at Hasanpura Premier League. You defeated them, and then very next day you got to the finals of Shalabuk Champions League. You lifted the title, and back here again you're registering a very good easy win for you. So this is why the track is natural, the track is normal, the track is smooth for the Sky Stars Cricket Club in the future, and I believe some more titles are going to be in the bag for Sky Stars this season. एशियासना में यहाँ पे मुकाबला बिल्कुल एक तरफा ये मुकाबला अपने नाम किया है। मुस्लिम सपोर्ट्स बांडीपोरा की टीम को हराते हुए चौथा मुकाबला मुस्लिम सपोर्ट्स की टीम आज इस टूर्नामेंट से बाहर जाती हुई। और फिलहाल हम आपसे यहाँ से विदा लेते हैं। अगला मुकाबला अगर यहाँ पे शुरू होता है आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। तब तक अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान एंड गुड बाय।